students, today we will discuss about the examples of simple harmonic oscillator, but the condition is that the degree of freedom is 1. Here we are first considering that there are two springs and at their equilibrium position we are considering the two springs having each of the spring having one end is fixed and the another end is free. And let us consider at equilibrium the length of the spring is a naught until no external force, no external agency is applied on it. Now in the second step we are considering that these two springs are attached with a mass at their free ends. Here we are attaching a mass m, and as the mass is attached the springs undergo expansion, and now the new length of the spring is a. We can find out the displacement. In this case the equilibrium length is a naught and now the new length is a after expansion. Hence for both the springs the expansion or the displacement is a minus a naught. Now we are applying some force on the spring. Let us consider the right. This spring is expanded in this direction by taking the mass under consideration, and now we are considering that this first spring is expanded like this, and as we are not changing the boundaries of these fixed walls, the second spring undergo compression, and let us consider this is the compression shown by the second spring, and the expansion shown by the first spring we are considering is as x. It means if the first spring having total length is a plus x, then the second spring shows the compression a minus x, but this is not the actual expansion because we are considering the equilibrium position, the length of the spring, and after adding mass the expansion is a, and after adding the force the expansion is x. Hence the net expansion and the net compression for the springs, can you calculate it? The total expansion here we consider this is a plus x, but we know very well know that the length a naught should be undergo subtraction in this case. Hence expansion is a plus x minus a naught. We are subtracting this the length of the spring. In the second case the compression is a minus x, but now here again from a minus x we are subtracting the equilibrium length or the length of the spring at rest. This is the expansion shown by this first spring and this is the compression shown by the second spring. We applied some force along x-axis, and due to the force the one spring undergo expansion and the another spring undergo compression. Then the net force, because the expansion and the compressed spring applied equal and opposite forces, not equal and equal forces, but they are applying the opposite forces. So the net force on this system can be represented by the force on the expansion system minus the force on the compression system, as we very know that the net force should be negative of the total displacement. Hence we will find out whether we will take it first, it second, and subtract them so that the terms comes out to be negative. So we take this compression term first, then we have this is the change in the length, and we know that we have to add a force constant and into
change in the length, and change in the length is a minus x minus a naught. With negative sign, because they are showing equal opposite forces, we again add the force constant, and now in this case we can say it a spring constant. And next we have to put the change in the length or displacement, and now the displacement for the spring is a plus x minus a naught. And on solving all these terms, you can easily find out that the net result is minus 2 times of kx. Open these brackets, cancel out the common terms, and after that you will get minus 2 kx. Next step, we will put the force which displaces the spring, and according to the Newton's second law of motion, force is equal to mass into acceleration, and in our displacement case it can be represented by mass into displacement time derivative, second order time derivative, and this is equal to minus 2 kx. Force is equal to force, and this equation can be also written as d square x upon dt square, and shift mass towards the right hand side, you will get minus 2 kx divided by m. And comparing this equation with the equation of motion of simple harmonic motion, that is d square x upon dt square is equal to minus omega square x. Here omega is the angular frequency. Comparing both the side, you will have omega square is equal to 2k by m, or you can say that omega is equal to under root 2k divided by m. And we can easily find out the time period of our system which is in motion, simple harmonic motion. Omega is equal to 2 pi upon t, and it means that is t is equal to 2 pi under root m upon 2k. This is the time period for our system. Next, we are taking another example for one-dimensional 1 degree of freedom simple harmonic motion. Next case is our simple pendulum. Let us consider the case of simple pendulum. What is simple pendulum? It is a system consisting of a long thread or cord attached with one end, another end having a point mass but a heavy mass. Let us consider this mass is m, and this pendulum is displaced by a force F with an angular displacement of theta. Now we will find out how many forces and which force contribute in displacement. We very well know that the weight of the force is vertically downward, and if we expand this line, we are seeing that these two lines are parallel and this is a transversal line, so this angle should be equal to this, that is corresponding angle, and this component of the weight or the force mg is equal to mg cos theta, that is the horizontal component of the weight. And making an angle of 90 degree with the horizontal component, you will have a vertical component, that is mg sin theta, and mg sin theta is forcing this point body towards the equilibrium position, towards the rest position. It means this is the force which we have needed for our equation of motion. Let us consider the displacement from this point to this point is x psi. You can imagine anything, आप इसको कोई भी symbol से represent कर सकते हैं. Then according to the displacement force, the restoring force, you will have F is equal to minus k psi, that is the displacement shown by the force towards the mean position. And in our case,
F is equal to minus mg sine theta. In simple harmonic motion, when we are studying about their equation of motion, we consider the angles are very very small. सिंपल हार्मोनिक मोशंस आप वहीं पर देख पाएंगे जिन सिस्टम्स के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल होती है। यहाँ पर हम फ्रिक्शन की फ़ोर्स, विस्कस की फ़ोर्स, यानी कि जो भी फोर्स आपके ऑसिलेशंस को डैम्प कर रही है, उनकी एनर्जी को डिक्रीज़ करवा रही है, उनको भी हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते। तो माइंड में जब भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी करें तो दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आप जो भी डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे आप एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट लें, आप डिस्प्लेसमेंट लेंथ ले रहे हो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट एंगल ले रहे हो, आप हमेशा इनको बहुत स्मॉल कंसिडर करेंगे। माइंड में ये फिगर ध्यान में रखिएगा। सेकंड, हम यहाँ पर ये भी कंसिडर कर रहे हैं, हम यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। Then according to our assumption, if theta is very small, then we can change sine theta to theta, that is the plane angle, and the force can be written as minus mg theta, where theta is a plane angle, and according to geometry, plane angle is given by the length of the arc divided by the radius. अगर यहाँ पर आपने लेंथ ऑफ द कोड कंसिडर कर ली है L, और अगर आप इस आर्क को कंप्लीट करते हुए एक सर्कल यहाँ पर बनाते हैं, तो ये जो साई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लेंथ ऑफ द आर्क को। कैसे? क्योंकि आपने एंगल बहुत छोटा लिया है। ये जो आपके पॉइंट्स हैं ए और बी, दे आर वेरी नियर बाय टू ईच अदर। अगर ये बहुत पास पास हैं तो ये आर्क कर्व नहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये जो साई है ये आपको लेंथ ऑफ द आर्क रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो लेंथ है कोड की, वो एक तरह से आपके सर्कल की रेडियस बन गई है। तो थीटा को आप दे सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, जो कि यहाँ पर आपकी लेंथ ऑफ द कोड है। तो आपके पास यहाँ पर जो फोर्स है वो बन गई है F इज़ इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। थीटा की जगह आप यहाँ पर साई डिवाइडेड बाय L ले लेंगे। तो ये आपकी जो है राइट हैंड साइड आ गई है फोर्स की। तो लेफ्ट हैंड साइड याद कीजिएगा कि आप क्या पुट कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, F इज़ इक्वल टू ma, और यहाँ पर आप डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में दे रहे हैं तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस इज़ इक्वल टू माइनस एम जी साई डिवाइडेड बाय L। दोनों तरफ m से m को आप कैंसिल आउट कर दीजिए। और अपनी इस इक्वेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से, जो कि आपके पास है डी स्क्वेयर साई अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर साई। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी जी अपॉन एल, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट जी बाई एल। And from this you can easily find out the frequency of the pendulum and the time period of the pendulum, as omega is angular displacement upon time t, and here we will find out that t is equal to 2 pi under root L upon G, that is the time period of your simple pendulum. आप यहाँ पर कितना भी हैवी मास लगा दीजिएगा, टाइम पीरियड, ये ऑसिलेशन एक कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए दैट इज़ नोन एज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो आपकी बॉडी है उसका साइज़ क्या है और इसका मास यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लेकर चलेंगे दैट इज़ कंपाउंड पेंडुलम। व्हाट इज़ कंपाउंड पेंडुलम? कंपाउंड पेंडुलम के अंदर यहाँ पर हम आपके बॉडी का जो शेप है वो प्रिसाइज नहीं कर सकते, वो नहीं बता सकते। आपका कंपाउंड पेंडुलम किसी भी इरेगुलर शेप की बॉडी हो सकता है और उसका मास होना चाहिए। कंसीडर कर लीजिए ये कोई इरेगुलर शेप की बॉडी है, इसी को हम कंपाउंड पेंडुलम कह देंगे। अगर पी पॉइंट पर इसको हैंग कर दिया जाए और एक तरफ से आप इसको पकड़कर और इसका छोड़ दें, अगर इस तरह की मोशन ये बॉडी दिखाती है तो इसी बॉडी को हम कंपाउंड पेंडुलम यहाँ पर कह देंगे। अब इसकी लेंथ कहाँ से ली जाएगी? आपको पता है कि इस बॉडी का कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पर सेंटर ऑफ
फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम करेगी और इस पॉइंट को हम यहाँ पर नाम दे देंगे, दैट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो आपका ये जो पॉइंट है जहाँ से आप इसको हैंग कर रहे हैं, जिसके अबाउट ये आपको ऑसिलेटरी मोशन देगा, ये आपके पास हो जाएगी P से लेकर L तक, G तक, दैट इज़ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो अगर यहाँ पर हम पिछले पेंडुलम से कंपेयर करें तो आपने धागे की लेंथ ली थी, यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, हैंगिंग पॉइंट और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर इस बॉडी की लेंथ कंसिडर कर रहे हैं। अब आप क्या कीजिएगा, इसको पकड़िए और इसको यहाँ पर एक फोर्स से ले आइए तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ये जो बॉडी है आपकी, ये जो आपका जी पॉइंट है ये आपका कहीं ना कहीं जी डैश पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉडी कुछ आपको इस तरह से यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपके पास आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट को आप साइज से किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम यहाँ पर थीटा से कंपेयर कर रहे हैं, थीटा से कंसीडर कर रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका कंपाउंड पेंडुलम अबाउट पी पोजीशन ऑसिलेटरी मोशन दे देगा। नेक्स्ट यहाँ पर फिर वही फोर्सेस काम करेंगे, नीचे की तरफ आपके पास mg हो जाएगी, इधर आपके पास हो जाएगा mg cos थीटा, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा और ये जो फोर्स है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट mg का, दैट इज़ mg sin थीटा, ये फोर्स आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आपके पेंडुलम को लाने की कोशिश करेगी। तो ये वो फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश कर रही है, यही आपकी रेस्टोरिंग फोर्स है। अगेन फिर वही कंसिडरेशंस हम लेंगे, थीटा आपका बहुत स्मॉल है क्योंकि हम यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर रहे हैं, थीटा इज़ ए वेरी स्मॉल एंगल। तो फोर्स जो है आपकी F इज़ इक्वल टू माइनस mg थीटा हो जाएगी और जो आपके पास दूसरी फोर्स है आप याद कीजिएगा उसको आप कैसे रिप्रेजेंट किया करते, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ पर बॉडी जो है लीनियर मोशन नहीं दे रही है, बॉडी आपके पास मास जो है आपका पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे, आप यहाँ पर मास ना लेके आप यहाँ पर लेंगे अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एंगुलर मोशन के अंदर मास को हम रिप्लेस करवा देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो m की जगह यहाँ पर हम ले लेंगे I, दैट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी। तो आप शेप चेंज करते जाइए, I की वैल्यू चेंज होती जाएगी। उसके बाद आपके पास है एक्सेलरेशन, यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, एंगल टाइम के साथ चेंज हो रहा है। जी डैश पॉइंट यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा और एट लास्ट जी पर भी पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हमारी मास इनटू एक्सेलरेशन वाली टर्म को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की टर्म में चेंज कर दिया है, बट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग फोर्स, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं कि यहाँ पर जो फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स वो है आपकी माइनस mg थीटा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा दैट इज़ माइनस mg थीटा और इधर आपके पास आ जाएगा दैट इज़ I इंटू डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जो फोर्स हम लेकर चल रहे हैं ये हमारी लीनियर फोर्स है, लेकिन बात यहाँ किसकी कर रहे हैं हम, एंगुलर मोशन की। तो एंगुलर मोशन में हम फोर्स नहीं लगाते, वहाँ पर आपकी जो फोर्स है वो किससे रिप्लेस हो जाती है, टॉर्क से रिप्लेस हो जाती है। तो टॉर्क किसके बराबर ली जाती है, दैट इज़ R क्रॉस F रेडियल वेक्टर और इनटू में हम फोर्स लेते हैं। तो यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू है दैट इज़ रेडियल वेक्टर, ये जो लेंथ है हमने L ली है और फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई है mg थीटा। तो एंगुलर फोर्स को एंगुलर फोर्स के ही इक्वल हम करेंगे। तो ये जो एंगुलर फोर्स आपके पास आ गई है इसको हम एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क के इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर mg थीटा के साथ आपके पास एक टर्म और भी आ जाएगी दैट इज़ L, और थीटा को हम ऑलरेडी स्मॉल कंसीडर यहाँ पर कर चुके हैं। तो अब देखिएगा थोड़ा सा रीअरेंज कीजिए इस टर्म को और इसको
ऐसे इक्वेशन में पुट कीजिएगा जो इक्वेशन आपको लगे कि आप फैमिलियर हैं इसकी इक्वेशन से। हम इसको लिख सकते हैं आई डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम जी एल डिवाइडेड बाय आई और इनटू में थीटा। यहाँ पर एक जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है थीटा, जो आपके पास आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को शो कर रहा है। डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस एम जी एल, और यहाँ पर ये जो है आई ऑलरेडी हम शिफ्ट कर ही चुके थे, तो एम जी एल डिवाइडेड बाय आई, और इसको अगर आप थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल दें तो आप जानते हैं कि जो पूरी टर्म है ये और किसी चीज़ को नहीं ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दिस इज़ योर एम जी एल डिवाइडेड बाय आई, और यू कैन से दैट ओमेगा is equal to under root of mgl divided by I, and you can very well find out the time period with the angular velocity 2 pi upon t, and this t is equal to 2 pi under root I divided by mgl. This is the time period for your compound pendulum. Next we will discuss the next example of your torsional pendulum. Torsional pendulum आपके पास एक सिस्टम है जो आपने एक वायर ले रखी है, उसका एक एंड आपने फिक्स कर रखा है, हैंग कर रखा है वॉल से, और जो दूसरा एंड है उस पर आपने डिस्क शेप में एक मेटालिक मटेरियल और एलिमेंट ऐड कर रखा है, और सेंटर से आपने वायर के डिस्क के सेंटर से आपने अपनी ये वायर हैंग कर रखी है। अब क्या कीजिएगा, ये सर्कुलर बॉडी है, लेट अस कंसीडर आपने एक ये प्लेट लगा दी है, आपके पास ऊपर से वायर से ये हैंग है और नीचे आपने एक प्लेट लगा रखी है। आपने क्या करना है, इस प्लेट को घुमाना है इस तरह से, ये इस तरह से मोशन नहीं देनी है आपने इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करेंगे तो आपको पता है ये तार मुड़ जाएगी, ये आपकी जो कोड है वो मुड़ जाएगी, ये ट्विस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास जो है एक टोर्शनल कपल लगेगा, यानी कि फोर्स लगेगी, टॉर्क लगेगी, लेकिन वो आपकी इस तरह से लगेगी कि ये उंगलियां अगर आपकी अंदर की तरफ जा रही हैं तो अंगूठा आपका बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कपल में काम करेगा, ये तार आपका मुड़ जाएगा, बल खा जाएगा। तो ये इसको हमने नाम दे दिया है कि ये आपका शेफ्ट है और ये आपकी डिस्क है, और यहाँ पर हम जो है हमारे डिस्क को रोटेट करवा रहे हैं, ऑसिलेट नहीं करवा रहे हैं। तो अब देखिएगा कितना टॉर्क यहाँ पर काम करेगा। अगर हम कहें कि हमने घुमा दिया और ये जो आपका शेफ्ट है ये बल खा गया है थीटा एंगल से, और आपने ये जो टॉर्क लगाई है इक्वल एंड अपोजिट, ये उंगलियां आपके अंदर की तरफ जा रही हैं, अंगूठा आपका बाहर की तरफ आ रहा है, तो आपने एक टॉर्क लगा दी है। इट मीन्स यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दिस। तो इस फोर्स की वैल्यू आप कैसे यहाँ पर निकालेंगे? नॉर्मली फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं m × a से, लेकिन यहाँ पर आप एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, और एंगुलर मोशन में ये जो टॉर्क हम कंसिडर कर रहे हैं ये हम पर यूनिट एंगल कर रहे हैं। तो टोटल टॉर्क कितना लगेगा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की हुई है? तो लेट अस कंसीडर ये जो टॉर्क है आपका, दिस इज़ पर यूनिट एंगल, एंड टोटल एंगल ट्विस्ट कितना हुआ है, टोटल ट्विस्टिंग टॉर्क कितनी लगी है आपकी यहाँ पर, या टॉर्शनल कपल कितना आपका लग रहा है, दैट इज़ योर 2 times ऑफ थीटा। इट मीन्स दिस इज़ द टॉर्क यू हैव अप्लाइड टू द शेफ्ट। ये आपने यहाँ पर टॉर्क लगा दी है, तो आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोशन के केस में मास आपका चेंज हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है वो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास m × a की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे दैट इज़ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू दैट इज़ योर एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द टॉर्क। ये आपके टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। देखिए बड़े इक्वेशन आपकी नॉन से फैमिलियर से इक्वेशन आ गई है, डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर
इज इक्वल टू माइनस टो डिवाइडेड बाय आई टाइम्स ऑफ थीटा। और इस इक्वेशन को अगर आप SHM से कंसिडर करेंगे तो यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन आई, वेयर टू इज़ द टॉर्क पर यूनिट एंगल, और टाइम पीरियड आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ जाएगा। ये जो टॉर्क की वैल्यू ये डिपेंड करेगी कि ये जो आपने वायर ली है ये आपने होलो ली है या आपने सॉलिड ली है। ये ऑलरेडी आप 11th में विच वायर इज़ मोर स्ट्रॉन्ग, सॉलिड वायर और होलो वायर और पाइप, वहाँ पर आप ऑलरेडी इस चीज़ का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस about the simple harmonic motion in a U-tube। अब U-tube में सोचिए कि इस शेप की आपके पास एक ट्यूब है, इसमें आप हार्मोनिक ऑसिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे। आप इस ट्यूब को पानी से भर दीजिए। तो हमने क्या किया, इस ट्यूब को हमने पानी से भर दिया। तो हम देखेंगे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेवल आपके पानी का हो जाएगा। अब फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड जो है यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर दी तो लेवल यहाँ पर ये नहीं रहेगा, लेवल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। नॉर्मली हमने इक्विलिब्रियम में लेवल ये लिया था और फोर्स अप्लाई करते ही जो पानी है वो आपका नीचे चला गया, डिस्प्लेसमेंट हमने वाई कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर पानी का लेवल राइट हैंड साइड में आपके पास इतना था इक्विलिब्रियम कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। तो जितना पानी आपका यहाँ पर गया है, आपने ना तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करना ना वॉल्यूम डिक्रीज़ करना है। तो अगर पानी का वॉल्यूम सेम रहेगा तो यहाँ पर पानी जितना नीचे गया है यहाँ पर पानी आपका उतना ही ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स वाई की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो जाएगी। तो आपने जो फोर्स लगाई है यहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है, आपने नीचे की तरफ फोर्स लगा दी और यहाँ पर आपका पानी उतना ही ऊपर चला गया है। तो देखिए टोटल जो है फोर्स को यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -mg से। g दैट इज़ योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर मास किस चीज़ का ले रहे हैं, मास उस चीज़ का ले रहे हैं जो आपने यहाँ पर शिफ्ट किया है। यहाँ पर इतना पानी आपने यहाँ पर शिफ्ट किया है, इतना मास यहाँ पर आपने शिफ्ट किया है। तो टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का हो गया है, 2y का हो गया है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये जो आपके पास एरिया है, आपकी ट्यूब का जो एरिया है, कंसीडर कीजिए कि ट्यूब का एरिया आपके पास A है। तो बताएंगे वॉल्यूम कितना शिफ्ट हो गया है। वॉल्यूम दैट इज़ एरिया इनटू लेंथ कह दीजिए या एरिया इनटू हाइट कर दीजिए। अब आपके पास जो हाइट है वो आपकी y इधर है, y इधर है। तो डिस्प्लेसमेंट टोटल आपने कितने का दिया है, 2y का दिया है, दैट इज़ वॉल्यूम। अगर हम ये कंसिडर कर लें ये जो आपने लिक्विड भर रखा था इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, तो हम बहुत ईजिली यहाँ से मास की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कंसिडर कीजिए कि जो आपके पास डेंसिटी है वो आपके लिक्विड की रो है। देन व्हाट इज़ द रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। देन व्हाट इज़ मास, मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा क्योंकि हमें फोर्स की वैल्यू निकालनी है। देन फोर्स F इज इक्वल टू माइनस साइन आपके पास है, आप M की जगह ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज़ मास इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जगह यहाँ पर हम फिर चेंज कर रहे हैं, दैट इज़ एरिया इनटू लेंथ। और इस लेंथ को हम यहाँ पर किससे कंसीडर करवा रहे हैं, 2 पाई से। तो ये जो पूरा मास है आपके पास, मास की टर्म कितनी हो जाएगी, दैट इज़ रो A इंटू 2y टाइम्स ऑफ g। और अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें इन द फॉर्म ऑफ ky वेयर y इज़ रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट, तो आपकी पूरी टर्म यहाँ पर F इज़ इक्वल टू माइनस आपके पास है ही 2 को लेकर चल रहे हैं आप, रो को लेकर चल रहे हैं आप, A भी आपके पास है, यहाँ पर G भी है और साथ में मल्टीप्लाई में आपके पास y भी है। तो K की जो वैल्यू है आपके पास कांस्टेंट जो आपके पास है फोर्स कांस्टेंट, K कम्स आउट टू बी 2 रो A G। और अगर आपको फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू पता है देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड द फोर्स कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू K बाय M।
और k बाय m जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे देन यू विल गेट ओमेगा इज़ इक्वल टू k की जगह 2 रो ए जी और डिवाइडेड बाय आपके पास है द मास, और यहाँ पर मास जो हमने निकाला है वो टोटल मास हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ द टोटल मास। ये डिस्प्लेस्ड मास नहीं है, टोटल मास है। और टोटल मास आपके पास ये यहाँ पर इस पूरे फ्लूइड का है। तो अगर आप इस पूरे यहाँ से यहाँ तक भरे हुए की लेंथ L कंसिडर कर रहे हैं तो डेंसिटी आपके पास रो हो गई है, एरिया आपके पास A हो गया है। तो हम बहुत इजीली यहाँ से टोटल मास निकाल लेंगे, और टोटल मास की वैल्यू कितनी आएगी, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आपके पास हो गया एरिया इनटू लेंथ। तो यहाँ आपके पास जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट कीजिए, एरिया से आपका एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, देन यू विल गेट द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2g डिवाइडेड बाय l, एंड द टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, और ये टर्म आपकी रिवर्स हो जाएगी l अपॉन 2g। ये देखिए लगभग वैसा ही एक्सप्रेशन आपके पास आ गया है जैसे कि आपने सिंपल पेंडुलम में किया था। सिंपल पेंडुलम में हमने यहाँ पर क्या किया था, l अपॉन g किया था, और यू शेप ट्यूब में आपके पास कितना हो गया, l अपॉन में 2g। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, इसके लिए हमें फ्लूइड कंसिडर करना पड़ेगा, तो ये हमने यहाँ पर फ्लूइड कंसिडर कर लिया है। और फ्लूइड की डेंसिटी आप यहाँ पर रो कंसिडर कर सकते हैं। आपने एक पाइप यहाँ पर डाल दी है वर्टिकल पोजीशन में, और अभी पाइप आपकी रेस्ट में है, कोई मोशन शो नहीं कर रही है, लेकिन आप क्या कीजिएगा, फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करेंगे पाइप जो है आपकी थोड़ी सी नीचे चली जाएगी, और हमने मान लिया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास हुआ है वो y का हुआ। लेकिन जैसे आप फोर्स को हटाएंगे, जो ये आपकी पाइप है, ये जो बॉडी है, इट विल स्टार्ट टू ऑसिलेट, ये ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कितना नीचे जाएगी या कितना ऊपर जाएगी डिपेंड्स कि इसने पानी कितना हटाया है, डिस्प्लेस्ड वाटर कितना है। डिस्प्लेस्ड वाटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको आप बायंट फोर्स भी कहते हैं, और जिसको आप फोर्स ऑफ बायंसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, बाइंड फोर्स लगा दी है, एंड बाइंड फोर्स इज ड्यू टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की वजह से लगा है। तो अगेन फोर्स इज इक्वल टू mg, और यहाँ पर ये जो mg है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने फिर कंसिडर कर लिया कितना डिस्प्लेस किया होगा। आपके पास अगर एरिया हम मान लें इस बॉडी का A है, और हमें पता है कि बॉडी नीचे कितनी शिफ्ट हुई है y, तो आपके पास वॉल्यूम इतना ही तो पानी का शिफ्ट हुआ है या आपके फ्लूइड का शिफ्ट हुआ है। तो अगेन ऊपर वाला जो आपका एग्जाम्पल था वहाँ से हम अगेन फिर वही काम कर रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पर जो मास है वो आपके फ्लूइड का है, और वॉल्यूम क्या लेकर चलेंगे, कितना वॉल्यूम आप हटा रहे हैं आप उतना ही तो हटाएंगे जितनी आपकी बॉडी का वॉल्यूम नीचे आए, शिफ्ट हुआ है, और वो कितना हुआ है आपके पास a इंटू में y। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो a इंटू में y। तो m की जगह आप रो a इंटू में y रख देंगे, और साथ में आपके पास यहाँ पर g है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स रेस्टोरिंग है, पार्टिकल को या बॉडी को रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है। अगेन कंपेयर कीजिए इस इक्वल माइनस के वाई से, और कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रो ए जी, और इससे आप पता लगा लेंगे आपकी एंगुलर वेलोसिटी का, जिसको आप k डिवाइडेड बाय m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो m है यहाँ पर आपकी बॉडी का मास है, ये आपका जो पूरा पाइप है इस बॉडी का मास है। तो इस बॉडी का मास, ये यहाँ पर आपकी बॉडी का मास कंसिडर कीजिएगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास जो है दैट विल कम आउट रो ए जी, दैट इज़ के की वैल्यू पुट कीजिएगा, और डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी, और टाइम पीरियड निकाल लीजिएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई, और ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, मास ऑफ द बॉडी ऊपर आ जाएगा और रो ए इंटू में जी नीचे आ जाएगा। तो ये आपका केस है जब आप
आपकी किसी बॉडी को फ्लोट करवा रहे हैं, ये सारे केसेस जो हमने लिए हैं वो हमने मैकेनिकल केसेस लिए हैं। हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल वेव या एकॉस्टिक वेव, लाइट वेव वगैरह कंसीडर नहीं की है। तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन इलेक्ट्रिसिटी में भी बन रही हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बन रही हैं, तो वहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो एक केस हम उसका भी स्टडी कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर सबसे सिंपल सर्किट हम लेकर चल रहे हैं, दैट इज़ योर टैंक सर्किट कहते हैं आप इसको आप एलसी सर्किट भी कहते हैं। तो यहाँ हम क्या कम कर रहे हैं, एक आपने इंडक्टर ले लिया है, एक हमने यहाँ पर कैपेसिटर ले लिया है, और ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यानी कि अब तक यहाँ पर हमने किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई नहीं दी है। अब क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए यहाँ पर आपको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये फोर्स यहाँ पर वोल्टेज है। वोल्टेज क्या करती है, वर्क अपॉन चार्ज करती है। तो वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी है, और लेट अस कंसीडर जो सोर्स लगाया है आपने वो वी लगाया है। धीरे धीरे क्या होगा, ये कैपेसिटर की जो प्लेट है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम सी कंसीडर कर रहे हैं, ये इंडक्टर की इंडक्टेंस को हम एल कंसीडर कर रहे हैं। ये धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, ये धीरे धीरे आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। एंड नाउ रिमूव दिस सोर्स, आप इस सोर्स को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक बार फोर्स लगाते हैं और फिर फोर्स नहीं लगाते। तो हमने यहाँ पर वर्क करवा दिया है, अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। तो आपके पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। नेगेटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपका मूव करना स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। धीरे धीरे यहाँ पर नेगेटिव प्लेट पर चार्ज नेगेटिव कम होता जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पॉजिटिव प्लेट पर जाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज भी कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से यहाँ पर एक करंट आ जाएगा। एंड ड्यू टू दिस करंट यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। आप जब भी किसी कॉइल में एक करंट फ्लो करवाते हैं तो वो कॉइल नहीं रहती, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको आप लगातार किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। सोचिए पूरा नेगेटिव जो है आपका ख़त्म हो गया, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे वहाँ मूव कर गए, तो ये पूरा पॉजिटिव भी ख़त्म हो गया है। लेकिन अब देखिए करंट मूव कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे, कब तक करते रहेंगे, जब तक धीरे धीरे आपका ये इलेक्ट्रॉन्स मूव ही करते रहेंगे। आप इसको यहाँ पर इनर्शिया की प्रॉपर्टी कह दीजिए, यहाँ पर आप लेंजेस ला का यूज़ कीजिएगा, क्योंकि जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ है ये अपने ही कोज को अपोज करता है। ये करंट यहाँ इन मोशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था। अब मोशन अगर रुकने की कोशिश करेगी तो ये वाला करंट इस मोशन को रुकने भी नहीं देगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे धीरे धीरे। फिर क्या होगा, अब पहले प्लेट्स न्यूट्रल हो चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो अब भी मूव किए जा रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव कर गया तो ये तो बन गया पॉजिटिव, ये बन गया आपका नेगेटिव। तो अब आपके पास पोलैरिटी आपकी प्लेट्स की चेंज हो जाएगी। जो प्लेट पहले नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, और जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। इस तरह से आपका टैंक सर्किट काम करता है। तो वोल्टेज जो हमने दी थी वो वोल्टेज इस प्लेट के ऊपर चार्ज लेकर आ रही है। लेट अस कंसीडर कि ये आपके पास चार्ज क्यू है। तो ये जो चार्ज है वो किस पर डिपेंड कर गया, आपकी वोल्टेज पर डिपेंड कर गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर आप हटाते हैं तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो सी आता है, दैट इज़ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब देखिएगा ये वोल्टेज क्या यहाँ पर ख़त्म होगी, नहीं, ये वोल्टेज यहाँ पर भी चली गई है, जिसको आप इंड्यूस्ड वोल्टेज भी कहते हैं। तो इस इंडक्टर के अंदर जो वोल्टेज आपके पास जा रही है V इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमें पता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, V इज़ इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। एल आपके पास इसका इंडक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हो भी यही रहा है कि इसने जो भी वोल्टेज यहाँ पर ली धीरे धीरे सारी की सारी यहाँ पर पास कर दी है। इट मीन्स ये जो वोल्टेज है ये सारी की सारी यहाँ पास हो गई है। तो अगर आप यहाँ पर इक्विलिब्रियम देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, दैट इज़ वोल्टेज शुड बी इक्वल टू वोल्टेज। और यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू V इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ Q अपॉन C। तो आप यहाँ पर Q अपॉन C करें तो आपके पास देखिए दो वेरिएबल आ गए, एक तरफ आप चार्ज लिए बैठे हैं, एक तरफ करंट। हम क्या करेंगे,
करंट को इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पुट कर देंगे. करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो ये आप यहाँ पर पुट कीजिएगा -L. तो एक डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी यहाँ था, एक और हो गया, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड. एंड दिस इज इक्वल टू Q/C. और थोड़ा सा चेंज आउट कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जानी मानी सी इक्वेशन आपके सामने है. और इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी. एंड ओमेगा यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर वेरिएबल आपका चार्ज है. तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, दैट इज़ 1/√LC. तो आप टाइम पीरियड भी पता लगा सकते हैं, और टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू 2π, और आप इसको पलट देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा √LC. And in case of electronic circuit, this is your equation of motion, this is the angular velocity, and this is the time taken. These all are the examples of 1 degree of freedom of simple harmonic motion. Simple harmonic motion की जब हम स्टडी करते हैं तो इनिशियल कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं. इनिशियल कंडीशंस का मीनिंग क्या है? इनिशियल कंडीशंस का मीनिंग ये है कि आपने मोशन कहाँ से स्टार्ट की है. जब आप t इज़ इक्वल टू 0 पर थे तो आप यहाँ थे या आप कहाँ पर थे, और आपकी वेलोसिटी कितनी थी. तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए t इज़ इक्वल टू 0 पर आप कहाँ थे, यानी कि किस पोजीशन पर थे, या फिर कहीं आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी. सेकंड, अगर आप ये भी बता दें कि t इज़ इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन जो है वो निकाल सकते हैं. आप यहाँ पर हैं तो मोशन को इक्वेशन आपकी कुछ और आएगी, यहाँ पर हैं तो आपको पता है फेज डिफरेंस आपका चेंज हो जाएगा. एंगल आप फाई एंगल आगे चल रहे हैं तो यहाँ पर आप थीटा ना लेकर थीटा प्लस फाई कंसीडर करेंगे, अगर इस एंगल को हम फाई कंसीडर कर रहे हैं. तो इनिशियल कंडीशंस में आप सिंपल हार्मोनिक की जब इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं तो इट मीन्स यू आर डिस्कसिंग एट t इज़ इक्वल टू 0 व्हाट इज़ योर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ योर वेलोसिटी, and these are the important conditions to discuss about the motion or mathematical portion of your simple harmonic waves.